Hello, everyone. Welcome to a new episode of Seed to Forest. In today's episode, I, Gaurav Gupta, Chief Growth Officer at Xstep Foundation, will be talking to Aditya Shankar, co founder at Doubtnut. Doubtnut provides awesome solutions to blow away the doubts of students. In this episode, listen into Aditya speaking about Doubtnut's journey, but I hope you can really gain from some of the key aspects like how Doubtnut would look at understanding the behavior of students when it comes to asking questions, how they will look at the nuances when it comes to approaching consumers in tier 2 and tier 3 cities and towns, and also look at how Aditya steps back when he has to make some really crucial decisions. There's a lot to learn, and I enjoyed a lot talking to Aditya, and I hope you enjoyed listening into this conversation to unlock new possibilities for yourself. Happy listening. Aditya, thank you for making time. Sure. Thank you, Gaurav. Pleasure. You've had a great journey as a co-founder of Doubtnut. What you have done and achieved, especially in terms of looking at the impact that it's making in the education sector. So just wanted to explore the origins of Doubtnut a bit in terms of what were the problems that you saw that led to the birth of the idea behind Doubt. Sure. So prior to Doubtnut, Tanushri, my co-founder, and I were running a coaching institute for high school students in Gurgaon, grades 8, 9, and 10th, and focused on math, science, and what we called advanced mathematics. Now, what we saw in the classroom was students were hesitant to ask questions. Even if you kept the mahal of the class very open, where you encouraged people to ask questions, but there was some social taboo around, कि सवाल पूछेंगे तो people will think we are idiots or whatever. They may have some opinion, they'll form some opinion of it. Plus, it was also our experience as students where asking questions was considered to be a bad thing in the classroom. Even the teacher sometimes snapped at you and made remarks that you're not a good student and hence you're asking questions in the class. Right, so typically Indian mentality ऐसी थी कि सवाल पूछने में लोगों को दिक्कत होती थी. Now, when we were teaching, a lot of our personal time would go into answering doubts from students. Right, so that left us with very little time to do anything else, which is when Doubtnut started, but as an internal tool for our own institute. We would say, कि send us the question that you want to ask. अब उसमें problem था कि math science पढ़ाते थे तो type करना was difficult for them. So we asked them कि picture खींचो and send it to us. Right? When it came to us, we will answer it. Earlier, we would just scribble on the image they sent and send it back as a picture to them. Then we realized everybody was asking the same questions. So that meant that we should create better solutions to it, which is when we heard about a device called Microsoft Surface Pro 3. Right? It was a device where you could write on the screen. It was like a magic pen. Right? We said, let's get that. And जो हम scribble करके image पे बना रहे हैं, let's make a proper video out of it and then send it to students. And what we realized with that simple step, where we were creating videos of the questions that they were asking, and one question was being asked by multiple students, the same video was sent to all of them, and all of them were satisfied. So the results improved at our end, and our involvement with the students was also limited. So we had time to teach more students, which is when we thought, as a background, I'm from Bihar, so थोड़ा बहुत social impact हमेशा दिमाग में रहता है, थोड़ा politically mind active रहता है, तो तुमको लगता है कि तुम और क्या बड़ा कर सकते. In a coaching institute, you can teach 10,000, 1 lakh students maximum, but not beyond that. So if you want to impact millions of students, you have to do something about it. And we thought that if this idea, if we can scale, it could be a game changer for students' anxieties, right? कि student की anxiety, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं क्या? And typically what we have seen, जो हमारे यहाँ पढ़ने आते थे उनको तो हमने जवाब दे दिया किसी तरह से, but हर जगह ये नहीं हो रहा हो. So in that case, students would tend to lose their focus and interest in that subject, that topic. And multiple such events may lead to them dropping off from studies at all. Right. Completely. तो हमने बोला चलो इसको scale करते हैं. अब scale करने के लिए दो चीजें चाहिए थी. अब image में मेरे पास क्या सवाल आया है, ये मुझे पढ़ना आना चाहिए. वरना मुझे पता नहीं चलेगा सवाल क्या है. अभी तक तो हम मैनुअली कर रहे थे by eyes कि दिख गया हाँ ये सवाल है, इस सवाल का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो मेमोरी से उसको कनेक्ट कर. So we needed some sort of technology to be able to understand from the image what the questions are and then find the relevant solutions. Our first instinct was कि अगर हम सिर्फ ये technology भी बना दें और इसका solution शायद हम YouTube से ढूंढ.
YouTube पे वो कंटेंट पड़ा होगा, which is Right. big Yeah. repository of Yeah. content, and then we will serve it to the students. They'll be happy. But once we started digging deep into it, we understood that India में majority of the education content was around lectures. कि क्लास में गए एक टॉपिक को पढ़ाया, बट क्वेश्चंस का जवाब कोई नहीं दिया, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब बनाना मुश्किल काम है. इट वाज अ डर्टी वर्क. वी ऑलरेडी हैड मतलब बायजूस इन द मार्केट जो अच्छा काम कर रहा था लेक्चर्स बनाने, बट इसके ऊपर नोबडी वाज थिंकिंग अबाउट इट. was a big dirty, it's like the dirty job of the education कि आपको इतने सारे लाखों में वीडियोस बनाने पड़ेंगे तभी आप सर्व कर पाएंगे, राइट? तो वो हमें लगा कि चलो ठीक है, चैलेंज की तरह लेकर आते हैं. लेट्स सी इफ यू कैन क्रिएट सम प्रोसेसेस अराउंड क्रिएशन ऑफ कंटेंट आल्सो, कि जो सवाल है उनका जवाब भी क्या हम कुछ अच्छे तरीके से बना लें कि वो स्केलेबल हो जाए. तो ये दो प्रॉब्लम कि जहां पे हम प्योर टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम था कि इमेज से मैथ्स को पहचानना, इक्वेशंस को पहचानना, सवाल को पहचानना, डायग्राम को पहचानना और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पूरा रिपोजिटरी ऑफ कंटेंट बनाना. तो ये दोनों हमने साइमल्टेनियसली शुरू किया. टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड था नहीं, हम एंटरप्रेन्योर थे नहीं, हम टीचर्स थे. तो हमने फिर भी छोटी सी एक एग्टैक टीम बनाई, फर्स्ट इंजीनियर हायर किया, फर्स्ट कंटेंट में एक बंदा हायर किया, बोथ ऑफ देम आर विद अस टुडे, राइट? और हमने ये सोल्यूशन बनाना शुरू किया, बन गया. फिर हमने उसको मार्केट में लॉन्च किया. अब शुरुआत में एक सवाल का जवाब आने में मिनट्स में लगता था. फिर धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी पे काम करते गए. वी ब्रॉट इट डाउन टू 5 सेकेंड्स कि आप सवाल पूछेंगे 5 सेकंड के अंदर जवाब आ जाएगा. वी स्टार्टेड जस्ट विद मैथ्स. हमने बोला सिर्फ मैथ का सवाल देते हैं 11th-12th का. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बनता जाएगा हम बाकी टारगेट ग्रुप्स को खोलते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, राइट? फिर हमने 8th, 9th, 10th के लिए मैथ्स बनाया. फिर हमने देखा कि बच्चे अच्छे से उसका यूज कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा, अच्छा फीडबैक भी है. तो हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐड किया, बायोलॉजी ऐड किया, फिर धीरे धीरे और सब्जेक्ट्स ऐड किए. अब यहाँ पे दो तीन डिजाइन चॉइसेस थे हमारे पास. एक था, बहुत से लोग हमें बोलते थे कि आप सवाल का जवाब एक टेक्स्ट के फॉर्म में क्यों नहीं देते. तो ये बहुत बड़ा सवाल था, बिकॉज वीडियो बनाने में समय भी लगता है, पैसे भी लगते हैं थोड़े. तो हमने ये रूट क्यों लिया? तो इसका कारण ये था कि अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर मैक्सिमम टेक्स्ट बुक्स जो पब्लिश होते हैं, चाहे रेफरेंस बुक्स हो या टेक्स्ट बुक्स हो, उन सब में हाफ द बुक इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स गिविंग सॉल्यूशंस. सोल्यूशन होता है, बट उसमें कुंजी होती है, एक गाइड या की मिलेगा एक्स्ट्रा से. बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि वो टाइप्ड हो. मैथ्स टाइप करना थोड़ा डिफिकल्ट काम. तो मैं बोलता हूँ कि वो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्टेप्स होते हैं एंड नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग. उसको देखकर बच्चे को समझ में आए ये जरूरी नहीं है. जो बहुत अच्छा बच्चा है उसको समझ में आ जाएगा, बट जो एवरेज बच्चे हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे हैं, हम जैसे बच्चे हैं, उनको शायद उसको पढ़ के समझ में. तो हमने बोला कि जो हम वीडियो बनाते हैं उसमें जो ऑडियो का एक्स्ट्रा बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उससे समझ में भी आता है, और ये भी समझ में आता है कि जो सॉल्व कर रहा है वो क्या सोच रहा था. भाई पढ़ाई तो उस चीज के लिए ना कि मैं कैसे इस सवाल को पढ़ूं, तोड़ूं और उसको सॉल्व करना शुरू करूं. कॉन्सेप्ट्स कहाँ पे कौन से अप्लाई करने, क्यों अप्लाई करने, वो समझ में आना चाहिए. तो वो वाला एक पार्ट वीडियो से बहुत अच्छे से सॉल्व हो रहा था. तो हमने बोला ठीक है, टेक्स्ट अगर उसको देखना है, कॉपी करना, तो उसके बुक के पीछे उसको मिल जाएगा. हम वीडियो बनाते हैं ताकि उसकी पढ़ाई भी कुछ तो समझ में आए उसको. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. फिर हमने देखा अब वीडियो बना रहे हैं, उसका लैंग्वेज क्या लें. उस समय टिपिकली 2016-17 की बात कर रहा हूँ. उस समय स्टिल जियो वाज वेरी यंग, 2016 एंड में आया था. तो फिर भी लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट वाज इंग्लिश. और जितने भी एजुकेशन प्लेयर्स थे वो प्योर इंग्लिश में कंटेंट बनाते. तो और उसका कारण ये था कि वो प्रीमियम होता था और उसके लिए चार्ज करना आसान था. बट हमने बच्चों को पढ़ाया हुआ था और हम गुड़गांव के एकदम क्रीम, जिसको बोलते हैं ना, जो बेस्ट बच्चे होते उनको पढ़ाते थे. बट उनको भी हम प्योर इंग्लिश में नहीं पढ़ाते. उनको भी हम मिक्स्ड, जिस भाषा को, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ प्योर, मतलब हम अपने हिंदी भी है मिला हुआ, टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में रख लो बट समझा दो हिंदी में, राइट? तो इस तरह से पढ़ाते थे और उसमें रिजल्ट्स भी अच्छे आते थे. तो हमने बोला कि चलो ठीक है, हम अपने वीडियोस का शुरुआती वीडियोस का लैंग्वेज इंग्लिश रख. एंड दैट इवन दो इट वाज रिडिक्यूल्ड बाय मेनी, यार ये जो तुम्हारा वीडियो बना रहा है उसमें बिहारी एक्सेंट आ रहा है, राइट? इसमें प्रीमियम फील नहीं आए. ये बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस हमारे हुए, बट वी स्टक टू द गन. वी सेड नहीं,
हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, बाकी हम बाद में सोच लेंगे। तो ये जो स्टूडेंट फर्स्ट जो सेंट्रिसिटी थी हमारी कि स्टूडेंट के हिसाब से बनाना, वो हमारे काम आया बिकॉज वो वीडियोस चल बच्चों को पसंद आया बिकॉज वो उनकी लैंग्वेज में कोई बात करके उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं, हम वहां पे फोकस कर रहे थे कि समझाएं कैसे इसको, तो बच्चों को अच्छा लगा, समझ में भी आ रहा समझ था में और भी आसान भी था। आसान भी। तो फिर हमारे लिए वो एक अच्छा क्लिक कर गया, वेर वी वेंट अगेंस्ट द टाइड ऑफ द एजुकेशन। हमने बोला नहीं, हम इंग्लिश में वीडियोस बनाएंगे, बच्चों को देंगे और बच्चे उससे समझ जाएंगे। तो वीडियो बनाया, इंग्लिश में बनाया, हमने बोला इमेज से पूछो, लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा समय बचाते हैं। तो ये 3 चीजें हमारे बहुत काम आई और धीरे धीरे जैसे जैसे हम ग्रो करते गए, वी वर एबल टू रीच स्टूडेंट्स इन द हिंटरलैंड्स ऑफ बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ के बच्चे अभी भी प्योर हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, राइट, जहाँ पे वर्नाकुलर मीडियम प्रॉपर चल रहा है। अब उनके लिए इंग्लिश भी इनफ नहीं था, तो उनके लिए उनको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी, उनको त्रिकोणमिति समझ में आएगी, उनको रेडियस समझ में नहीं आएगा, उनको त्रिज्या समझ में आएगी। तो उनके लिए फिर हमें अब सोचना था कि अब उनके लिए वीडियोस कैसे बनाए। अब वैसे बच्चे बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म पे आए, सवाल पूछे, सवाल का जवाब देने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी को भी हिंदी समझना पड़ेगा, हिंदी समझ के फिर उसका आंसर देना पड़ेगा, वो हमने सॉल्व किया। साथ साथ हमने कंटेंट भी फिर प्योर हिंदी में बनाया, राइट। उसके कारण हम फिर और डीपली पेनिट्रेट करते चले, राइट, विच स्टार्टेड एज अ सिंपल प्रॉब्लम फॉर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। वंस वी पुट आवर माइंड्स टू इट, इसको स्केल करते हैं धीरे 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 धीरे, वी केम टू अ स्टेज वेयर वी आर टुडे by solving smaller problems one at a time। रिसोर्सेज की कम मतलब उस समय हम पे कोई पैसा भी बहुत सारा नहीं डालने को तैयार था, राइट, वेंचर कैपिटल रेज करना मुश्किल था, तो हमने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, धीरे धीरे करके इसको बनाया। ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व था, किसी ने किया नहीं था, सोचा भी नहीं था कि ये हो भी सकता है, राइट, लेकिन फिर वी स्टक टू आवर गन्स एंड वी वर एबल टू demonstrate some success out of it। In fact, see, what you talk about is very interesting because I think it is quite linked to the idea of a +1 change, Yes, which is simple yet transformational. And it hence helps evolve from where one is today to where one can be. And it's actually a series of +1s that we kind of see in that journey. हाँ, मतलब हमने बचपन से ना थोड़ा जनरली आप एजुकेशन में होते हो, एज अ टीचर आप पेडागोगिकल बन जाते हो, राइट, आपको हर चीज लथाड़ने की आदत होती है, बड़ी बनाने की आदत होती है। बट यहाँ पे हमने अपने उस टीचर वाले इंस्टिंक्ट को कर्व, हम सबके लिए सब कुछ कर नहीं सकते, सुपरमैन तो है नहीं, तो डिसाइड करना है कि हाँ इसके लिए करते हैं, इसको अच्छे से करते हैं। लेकिन एक चीज पकड़ो, जैसे हमने मैथ्स पकड़ा, 11th-12th के बच्चों को मैथ्स पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, उस पर फोकस किया, वो अच्छा हुआ, then we were able to show our success to some people who were kind enough to invest money in us, and then we were able to take care of other target segments, but again one step at a time, One step. And one step yet transform, which is giving value to the students, right? तो इस particular चीज को पकड़ते हुए जब see a lot of this because it's built success by success, let me call it that way. तो दिमाग में 2 सवाल आ रहे हैं, लेकिन पहला पूछता हूँ कि कुछ experiences जो students ने share करे which actually helped you believe more in what you were trying to do. एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वाक्य हुआ, जब हम सिर्फ मैथ्स के सवालों का जवाब देते थे, तो एक बच्चे का कॉल आया, बोला आपको समझ में नहीं आता, बच्चों को मैथ्स के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री कौन कराएगा। सो दैट वाज लाइक द बाय इन फ्रॉम द स्टूडेंट कि ही वाज फीलिंग सो मच अबाउट द प्रोडक्ट, ही केम, कॉल्ड अस, ही फिगर्ड आउट माय नंबर फ्रॉम इंटरनेट, कॉल्ड मी एंड सेड कि आपको ये भी कराना चाहिए, वरना बच्चे और क्या करें, राइट। सो दोस काइंड ऑफ, देन वी सेड अच्छा ठीक है, नाउ वी स्टार्टेड टू वर्क even more to make sure that we are able to add more subjects so that students are able to get everything under one roof। We have gotten, जैसे हिंदी वाला हमें कैसे पता चला कि बच्चों के मैसेजेस आने लगे कि बच्चे हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, हमारा क्या होगा। बहुत एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन पूछते थे कि हमारा क्या होगा, हमारा राइट। क्या होगा, अब और आपको समझ नहीं आ रहा, हमें ये भी चाहिए चाहिए, और हमारा क्या होगा, आप क्या कर रहे हो? डेस्परेट वाला ये जो एंजाइटी है ना, सवाल का जवाब पाना, ये बहुत तगड़ा एंजाइटी है, और ये बचपन से रहा होगा। हमने पहली बार सॉल्व करने की कोशिश की तो उनको लगा शायद ये मेरी बात सुन ले, पहले तो कोई बात सुनता नहीं था, तो हमारे पास आते थे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन लेके कि अब हमारा क्या हो, और हमारे लिए फिर हमारी रात की नींद उड़ जाती थी, अब क्या करें, बिकॉज हमने तो ये मिशन उठा लिया था कि हम सॉल्व करेंगे आपका। किसी को समझ में आए ना आए, मतलब पैसे बने ना बने, वो तो था ही नहीं कभी। फ्री प्रोडक्ट था, फ्री में हम आपका जवाब दे रहे थे, हमने बस कोई ह्यूमन का लेयर नहीं रखा था, हमने मशीन के थ्रू जवाब दे रहे, ह्यूमंस ने सोल्यूशन बना दिया, मशीन आपका जवाब देते जा रहा है।
तो अब हम उस मशीन को जितना डेटा देंगे उतने सवालों का जवाब हम मतलब आंसर कर पाएंगे। तो हमने काफ़ी मुझे याद है 2019 जून जुलाई में पहली बार हमने 1 महीने में 2 लाख वीडियोस बना 2 लाख 2 लाख वीडियोस। हमें लगा कि अब जल्दी करना है, इस समय समर ब्रेक होता है, मुझे अच्छे बच्चे चाहिए थे जो आईआईटी में पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जवाब देने, उनका समर ब्रेक होता है। तो आई वाज एबल टू हायर देम देन। उनके समर ब्रेक में हायर किया, 2 महीने के लिए आते थे, उनको जल्दी जल्दी ट्रेन किया, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप Right. किया कि वो वीडियोस का आंसर, राइट। और उसमें भी काफ़ी मतलब खर्चा होता था, सबको एक टैबलेट देना, Right. सबको एक हेडफोन देना, सबके लिए जगह बनाना। बट वी सेड इट इज़ इम्पोर्टेंट, सो लेट्स फ्रंट लोड कि हम वो 2 लाख वीडियो 6 महीने ही बना सकते थे धीरे धीरे। बट हमने बोला यहाँ पे ज़रूरी कि वी हैव टू गो होल हॉग, पूरा एक बार में करना। तो हमने एक दो मतलब उन 2 महीनों में मैक्सिमम थ्रूपुट निकालने की कोशिश की और हिंदी मीडियम भी लॉन्च किया। I am learning a lot in this conversation. Hope you are too. Which questions would you like me to ask? What areas would you like me to explore further? Please write to me at gaurav@takestep.org. तो इनफैक्ट इसके चलते एक और बात बाहर निकल के आती है आदित्य, विच इज एंड उसके भी 2 पहलू हैं कि क्या चीज है जो बहुतायत में है यानी अबंडेंस में है, राइट। एंड आई थिंक एक तरफ तो उसमें ये निकल के आता है कि क्यूरियोसिटी और हेंस एंजाइटी व्हेन आई हैव डाउट्स, वो बच्चों में है, हम सब में है, काफ़ी है। बहुत है, मतलब सब जगह है, राइट। तो दैट इज देयर इन अबंडेंस। एंड दूसरा अगर जो आपने अभी बताया और जैसे बात किया कि बच्चे थे और 2 महीने के लिए वो अवेलेबल थे, उनको कैसे यूज किया जा सके कि वो हमारे लिए वो कंटेंट बना पाए उस टाइम फ्रेम में जब वो अवेलेबल थे। यानी अब टिपिकली लोग वरना क्या करते हैं, उस तरफ जाते हैं कि लेट्स हायर द बेस्ट टीचर्स, डू द बेस्ट थिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट यू फोकस अपॉन व्हाट्स एबंडेंटली अवेलेबल। हाँ। फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 200 टीचर ढूंढ पाना मुश्किल काम है, बट 200 आईआईटी ग्रेड्स तो मैं ढूंढ सकता हूँ कि जो आईआईटी में पढ़ाई कर रहा है बच्चा अभी भी है, बिकॉज एक बार ग्रेजुएट हो जाएगा तो बहुत महंगा हो जाएगा, बट अभी वहां पर है तो आई कैन गेट द बेस्ट ऑफ द माइंड्स। राइट। ही स्टिल वेरी यंग, ही रिमेंबर्स व्हाट ही स्टडीड फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का बच्चा है, उसको अच्छा स्टाइपेंड भी मिल जाता है, तो ही कैन गो एंड एंजॉय हिज लाइफ आफ्टर वर्क। एंड फॉर अस ही हैज गिवन अस अ जेम, राइट। उसका एक वीडियो कितने बच्चों को यूज होगा। तो हमने 2017 में भी जो वीडियो बनाए थे वो आज भी हर महीने लाखों बार देखे जाते, हजारों बार देखे जाते, राइट। तो एक कंटेंट जो उस बच्चे ने उस साल बनाया था वो आज भी हमारे लिए रेलेवेंट, राइट। तो ही हैज गिवन अस अ वेरी इंपॉर्टेंट asset for students, Right. and to create it in abundance we needed them at that point of time, And they were abundantly abundantly that time. available. हम दिल्ली में हैं तो हमने आईआईटी दिल्ली, एनआईटीज जो अच्छे एनआईटीज हैं, एनआईटी जालंधर, एनआईटी कुरुक्षेत्र, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी धनबाद, आईआईटी गांधीनगर, बहुत सारे जगहों से बच्चों को लेकर आए। एक और अबंडेंस की बात है कि यहाँ पे एक चीज जो हमें कम लगती है इज कि हिंदी कितना बड़ा लैंग्वेज है या कोई और रीजनल लैंग्वेज कितना बड़ा है। नंबर ऑफ सिंपल सा स्टार्ट्स है कि जितने बच्चे यूपी बोर्ड में पढ़ाई करते हैं वो तकरीबन 3 टाइम्स है जो पूरे सीबीएसई ऑल इंडिया। और यूपी बोर्ड में बहुतायत जो हाई स्कूल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम। तो वो नंबर आप ये सोचिए कि सीबीएसई के टोटल बच्चों से ज्यादा है। अब इसमें बिहार और एमपी जोड़ दूं तो वो नंबर पता नहीं कितना बड़ा हो जाए, है ना। तो वो एक बहुत बड़ा तबका है जो हिंदी में पढ़ता है, राइट। और हिंदी में पढ़ता है, इसका एक इनडायरेक्ट कोरिलेशन ये भी है कि शायद उनके पास बहुत पैसे नहीं है कि वो किसी मतलब प्राइवेट सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ सके, है ना। तो उनके पास पैसे भी नहीं है, बट उनको जरूरत तो उनकी भी उतनी ही है जितनी मेरे बच्चों को होगी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनकी भी उतनी ही जरूरत होगी। वो हिंदी में पढ़ते हैं, किसी और लैंग्वेज में पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो छूट जाए पढ़ाई के दायरे से। तो हमें वहां पर एक कॉल लेना था, हमें पता था यहाँ से पैसे नहीं बनेंगे, राइट, बट इनको जरूरत है तो हमें इनके लिए एक सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। और सोल्यूशन ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो, जैसे हम बहुत से लोगों ने हमें यही बोला था कि आप एक ट्यूटर प्रोवाइड करते हैं एक बच्चे को, बट उस ट्यूटर का कॉस्ट बहुत होता है। और ऐसे में कितने ट्यूटर ढूंढ पाऊंगा जो उतने बच्चों को लाइव सेटिंग में पढ़ा सके, उतना आना भी चाहिए उसको। अब वो वाला रूट तो मैं नहीं ले सकता था, तो इसीलिए मुझे टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा रिलाई करना।
कि टेक्नोलॉजी बनाते हैं ताकि वो बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं है उसको मैं पढ़ाऊं और मेरे लिए बहुत ज्यादा टैक्सिंग ना हो। ये ना हो कि उसको पढ़ाने के चक्कर में मैं बैंकरप्ट। तो जो मेरे पास जो मेरे 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 पास मिनिमम रिसोर्सेज है उसमें मैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे ले। और खासकर अगर हम बच्चों की तरफ देखें तो स्मार्टफोन सबके पास है, खासकर जो सीनियर ग्रेड में होते हैं या पेरेंट्स के पास होता है। तो मेरे डाउट को मैं अपने पास जो आसानी से स्मार्टफोन है उसको सिंपल यूज करके, फोटो सबको लेना आता है, वो भेज के बस वीडियो देखें, बस click वीडियो मिल गया मेरे को देखने के लिए। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी बात कही आपने। वो एक जमाना था 17 18 19 प्री कोविड, जहां पे ना घर में एक मोबाइल फोन होता था, हम उसको घर का फोन बोलते। जैसे पुराने जमाने में लैंडलाइन होता था, घर में एक सारे सदस्यों के लिए एक ही फोन है। तो सेम पढ़ाई के लिए भी था कि एक ही फोन है, हर बच्चे को 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मिलता था। और हम क्या देखते थे कि उन्होंने बुक्स पे अपने गोल गोल चिन्ह मार्क करके रखे कि ये सवाल पूछना है, और धड़ल्ले से जैसे फोन मिलता था वो सवाल पूछ लेते। और एक ही घर में हम देखते थे, या इस समय क्लास 8 का सवाल आ रहा है, इस समय क्लास 12 का आ रहा है, एक ही नंबर से। तो फिर हमें समझ में आया कि अच्छा, ये 2 भाई बहन हैं, अलग अलग समय पे पढ़ाई कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। राइट, तो एक ही फोन को लेके, लेकिन लोग अपनी पढ़ाई की जरूरत है पूरी पूरी मतलब घर का फोन एक तरह से घर का टीवी था, टीवी घर था, का पुराना लैंडलाइन लाइन था, था, बट अब ये माध्यम बन गया माध्यम बन जिसके जरिए मेरे क्यूरियोसिटी, मेरे जो डाउट्स हैं, जो एबंडेंस में है, उनका आसानी से आंसर जवाब जवाब मिल। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आदित्य, ये अब जैसे ये जो आपकी जर्नी रही है, राइट, अब इसमें ऑफ कोर्स काफी सारी मिस्टेक्स भी हम्म। हुई, और जो मेरा इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल था वो ये था कि जो ये मिस्टेक्स हो रही थी, अल्टीमेटली ऑफ कोर्स आदमी गलती से सीखता है, तो इफ यू कैन बिल्कुल। थ्रो सम लाइट ऑन द मिस्टेक्स यू मेड एंड हेंस हाउ डिड इट लीड टू क्रिएटिंग अ चीज। navigating compass for doubtnet, that बिल्कुल। here are certain principles which hold us together as we make mistakes and hence we define them. तो कुछ उसके बारे में अगर आप बताएं। सो पहले तो कुछ मिस्टेक्स होते हैं कि आप किस टाइप के लोगों को हायर करते हैं अपने मिशन के। बहुत बार ये इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आर दे अलाइंड टू द विजन दैट। आप ना सिर्फ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों को हायर नहीं। आप की मान लिया कि मुझे OCR का एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। OCR इज द ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, जो इमेज को हम आपको वो लोग चाहिए जो वो भी करें और आपके साथ जुड़े रहने के लिए तैयार। स्टार्टअप की जर्नी हमारे बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी अच्छा चल रहा है, कभी बुरा चल रहा है, कभी ग्रो करते हैं, कभी नहीं करते। तो उस मौसम में अगर लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे तो आपका आपका जो मिशन है वो अधूरा। तो आप जब लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि वो सिर्फ एक छोटा सा जॉब करने नहीं आए, वो आपके साथ मिलकर एक चीज को सॉल्व करने, कि कम वॉट में हम उसको सॉल्व करें। बहुत बार बहुत सी चीजें जो हम कर रहे हैं तो बहुत अनग्लैमरस होता है। एक बच्चा सवाल पूछा, आप उसका जवाब दे रहे हैं, Right. है ना, मतलब पीछे टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, बट दिखता नहीं है। तो ऊपर ऊपर से बहुत अनग्लैमरस सा लगता है कि यार एक ट्यूटरिंग ही तो कर। राइट, तो उसमें लोगों का बाई इन खरीदना, उन लोगों का जो आपके साथ दे आर गोना गो ऑन द सेम जर्नी एज यू, सेम अप्स एंड डाउन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज आदमी आता है और छोड़ के जब जाता है तो उस समय थोड़ा बुरा तो लगता है, तो आपका स्पीड जो है वो हैम्पर हो जाता है। तो आप वो नहीं चाहते। तो हायरिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि कौन से लोग आपके साथ मिलकर इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, उसको बनाने के लिए एक काइंड ऑफ शपथ ग्रहण लिया हुआ है कि इसको अच्छा करके ही जाएंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। और Right? नेचुरली कुछ एक Natural. ऐसी हायरिंग की मिस्टेक्स हुई Mistake होंगी बहुत जिसके सारी। चलते आपने कि लोग आते हैं वो थोड़ा से, मैं उनको मर्सनरीज बोलता हूँ, कि यहाँ पैसा मिल रहा है ज्यादा, वहां ज्यादा मिल रहा है, वहां इधर उधर घूमते। राइट, उस केस में ना मतलब कंपनीज डोंट वैल्यू दो रिसोर्सेज। आए और चले, तो आपने कोई अपनी छाप भी नहीं छोड़ी। एक वो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जितना रिसोर्स है उसके हिसाब से प्लानिंग। मतलब इसका ये है कि आपने एक बहुत फंडू सा सिस्टम बना, बट आपके पास रिसोर्सेज नहीं है उसको मैनेज करने के लिए। तो एक बहुत सिंपल सी चीज होती है, जैसे टेक्नोलॉजी जिनको मतलब समझ में आता है, वो बोलते हैं कि माइक्रो सर्विसेज पे बनाया करो, अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बट वो एक सर्टेन स्केल के बाद। तो जब तुम स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने स्केल को समझना। या मेरा स्केल आज दिन में 1000 बच्चे आएंगे, आज दिन में 10,000 बच्चे आएंगे, या आज दिन में 1 मिलियन बच्चे आएंगे।
तो हर स्टेप के हिसाब से आपको उस समय चेंज करना चाहिए। अगर आप शुरू से ही 1 मिलियन के लिए करके रहेंगे, तो आपके कॉस्ट्स इतने ज़्यादा हो जाएँगे कि आप कभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएँगे। तो बहुत ज़रूरी है टेक्नोलॉजी में जब भी आप कुछ चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, ये समझना कि इज़ दिस रिलेवेंट फॉर द स्टेज दैट आई एम टुडे। तो हमने ऐसी बहुत सारी गलतियाँ की थी जब हम होता है ना कि अब आपको लगता है कि हम ताजमहल ही बना दें। बट ज़रूरी नहीं है कि ताज ताज मतलब आज के दिन में ही ताजमहल बनाना ज़रूरी हो। अभी छोटा-सा घर बनाता है जिसमें बारिश से बच जाए, ठीक है। फिर एक बड़ा बनाएँगे, फिर बड़ा बनाएँगे और शायद किसी दिन ताजमहल भी बन जाए। बट फर्स्ट डे यू कांट मेक दैट मिस्टेक, राइट? बिकॉज़ आपने अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो पहले सिंपलेस्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। देखते हैं, उसमें लोगों का फीडबैक आता है, लोग यूटिलाइज़ करते हैं, हमें समझ में आता है, अच्छा ये चेंज कर सकते हैं, ये बढ़ा सकते हैं। फिर दैट जो आप बोल रहे हैं कि 1% एवरी डे या 5% एवरी डे इम्प्रूव, रादर दैन कि हम एक बहुत बड़ा-सा सपना लेके फर्स्ट डे में हम इतना ही बना देंगे। अगर बन बन भी गया, तो आप उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे और बहुत बहुत बार लोग उसको बनाने के चक्कर में बैठ जाते हैं। तो ये हमने शुरू में बहुत जगहों पे देखा था कि हमें वी हैड टू स्केल बैक आवरसेल्व्स, थोड़ा पीछे आए, एक स्टेप बैक लिया, हमने बोला नहीं, सिंपल बनाते हैं, फिर आगे चलते हैं। सिर्फ मैथ्स करते हैं पहले, साइंस में जाएँगे तो नए प्रॉब्लम सॉल्व करने, एक स्टेप, राइट? एक लैंग्वेज बनाते हैं, बस दूसरी लैंग्वेज के लिए हो सकता है आपकी नेविगेशंस भी डिफरेंट होंगे। ये नहीं है कि सिर्फ हिंदी का वीडियो बना दें चल, आपको उस हिसाब से फ्लोज़ भी बनाने पड़ेंगे। उन बच्चों की रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट होगी, उनसे हम कैसे ओटीपी लेंगे, उनको फ़ोन कब मिलता है, क्या मिलता है, फ़ोन शेयरिंग हो रही है, प्रोफाइल कैसे बनेगा, तो ये सारी चीज़ें इट्स एक दिन में नहीं होती है, तो उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आप उसको सॉल्व करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि टेकिंग अ पॉज़, टेकिंग अ स्टेप बैक इज़ नॉट बैड। ये बचपन में हमारे एक टीचर थे, बोला पॉज़ बटन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बटन होता है, कोई यूज़ नहीं करता उसको, स्टॉप और प्ले ही करते हैं। बट पॉज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ पॉज़ इंश्योर्स दैट यू हैव टेकन रेस्ट बट हैव नॉट फॉरगॉटन द इंटेंसिटी वेयर यू आर। तो पॉज़ लेना बहुत ज़रूरी है। ये अब मैं 5 दिन से काम कर रहा हूँ, पॉज़ लेता हूँ मैं, स्टॉप नहीं होना। कि अपने सबकॉन्शियस में वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब क्या क्या बोलते हैं, अलाइव रहनी चाहिए ताकि एक दिन बाद जब मैं आऊँ तो आई एम फ्रेश बट आई नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। तो वो एक-एक स्टेप बीच-बीच में हम हमेशा पी हम रुकते हैं, एक स्टेप पीछे लेते हैं, देखते हैं क्या हुआ और फिर आगे बढ़ते हैं। एक और मिस्टेक है व्हिच वी आर लिविंग टुडे इज़ मोनेटाइज़। हाउ डू यू मोनेटाइज़, वेयर टू मोनेटाइज़? अनफॉर्चुनेटली जब हमने डाउटनेट स्टार्ट किया तो मोनेटाइजेशन वाज़ समथिंग दैट वी had not thought of. It was purely for a social cause कि बच्चों को ज़रूरत है तो बनाते हैं। राइट? एकदम वो कि एंग्ज़ायटी दूर करने के लिए एक प्रोडक्ट बना, हमने कभी ये नहीं सोचा कि मोनेटाइज़ क्या मतलब कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्या मोनेटाइज़? तो ये हमारा थॉट प्रोसेस कभी गया ही नहीं। तो अब जब हम एक स्टेज पर है जहाँ हमें मोनेटाइज़ करना है, तो वो हम वी स्टिल डोंट नो द आंसर टू इट, बट वी हैव टू फाइंड एन आंसर टू दैट आल्सो बिकॉज़ अच्छा प्रोडक्ट बना दिया और वो चले ही नहीं, बंद करना पड़े, व्हिच इज़ आल्सो नॉट अ ग्रेट प्लेस टू। तो हाउ डू वी फिगर दैट आउट? हाउ डू वी सस्टेन द प्रोडक्ट दैट वी हैव? राइट? ये एक आई डोंट नो इफ इट्स अ मिस्टेक और नॉट, बट वी शुड हैव बीन मोर विजिलेंट टू बिगिन विथ, टू स्टार्ट विथ कि हम इसके अराउंड मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। हमारा सारा का सारा एनर्जी चला गया था टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दोनों प्रॉब्लम वर द फर्स्ट वंस टू बी सॉल्व्ड, किसी ने सॉल्व नहीं किया था। टेक्नोलॉजी का पार्ट भी, कंटेंट का पार्ट भी, वी वर टू एनग्रॉस्ड इन इट, वी बिकेम टू क्लोज टू द प्रॉब्लम टू लुक एट द बिग पिक्चर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी-कभी डिटैच होके थोड़ा दूर जाके देखना पड़ता है, या तुम इस एक छोटे से गैप को लीक कर रहे हो, लीक को गैप कर रहे हो, बंद कर रहे हो, बट अ बिगर लीक कुड बी समवेयर एल्स आल्सो दैट। Fascinating, fascinating. So, आदित्य, अगर आपको कुछ वर्ड्स ये बोलना हो कि डाउट का सोल ये है, तो वो क्या हो? डाउटनेट का सोल स्टूडेंट्स है। एक स्टूडेंट को जब दिक्कत आए और वो डाउटनेट के पास आता है, तो वो हमारे लिए बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर होता है कि उसने अपने एंग्जायटी के मोमेंट्स में हमें याद, मतलब हम अपने मिशन में कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए। कि व्हेनेवर अ स्टूडेंट इज स्टक समवेयर, if he thinks of doubtnut and doubtnut only is our meter for success, which is our soul is कि बच्चा डिलाइट हो जाए, उसको सवाल का जवाब मिलता है, उसके लिए डिलाइटफुल एक्सपीरियंस हो, उसको समझ में आए, राइट? बहुत से लोग बोलते थे अगर बहुत ज्यादा सवाल पूछता है तो क्या उसको समझ में नहीं आ रहा। मैं बोलता था उस बहुत ज्यादा सवाल इसलिए पूछता था, बहुत ज्यादा सवाल है,
बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी क्यूरियोसिटीज है, आपने बोला अबंडेंस में। आप एक पूछ रहे हो, 10 पूछ, और वो एक के बाद 10 पूछ रहा है, तो इसका मतलब है ही लव्स यू। ही इज कम टू गेट रिड ऑफ एवरी एंजाइटी दैट ही बच्चे को की क्यूरियोसिटी को जज मत जज मत, पूछने दो, पूछने दो उसको, इनफैक्ट उसको प्रॉपर करो, हाँ, उसको धीरे 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 10 सवाल का जवाब आप दोगे तो 5 जो खुद से करें। तो वो हमारे लिए सबसे heart and soul lies when a student is able to find an answer and is delighted. अभी बुरा लगता है कि अगर हम किसी के लिए कोई जवाब नहीं ढूंढ पाते, तो we continuously keep thinking what are the different ways in which we can find answers to what we can't respond to. Thank you, Aditya. Thank you. Thank you. It was really fascinating listening you to so you much. and you very candidly sharing those experiences. Thank you so much. Correcting the mistakes. So thank Thank you, Gaurav. Thanks. I unlocked a lot of possibilities in this conversation. Hope it did the same for you. Which leaders would you like me to meet? What would you like me to ask them? Please write to me at gaurav@xstep.org.